Audio Jungle. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رنا ٹی وی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں اسد خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ اراضی مالکان کی سینہ زوری، ہائی اسکول زنانہ ڈوڈا کھیل پر کام بند، سینکڑوں طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ ٹی ایم اے کرک کے اہلکار مفت کی روٹی توڑنے لگے، گرلز اسکول نمبر 1 کی طالبات مشکلات میں مبتلا۔ پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلباء کا بنو پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، قاتلوں کی گرفتاری اور طلباء کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، بی ایچ یو ورانا میں ڈاکٹروں نے اپنی بادشاہت قائم کر لی، مریضوں کا علاج و معالجہ کلاس 4 کرنے لگے۔ ضلع کرک میں ہلاک بیماری نے پنجے گاڑ دیے، 5 سال کے بچوں اور بچیوں کو لپیٹ میں لے کر وبائی شکل احتیاط کرنے۔ معاشرے میں عورتوں کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے کوہاٹ یونیورسٹی کے شعبہ صحافت و ابلاغات کا سہ روزہ ورکشاپ۔ عوامی رابطہ کمیٹی کا 21 نومبر کی پولیو مہم کے بائیکاٹ کا اعلان، ہسپتالوں کی حالت ذات درست نہ کی گئی تو دمادم مست کلندر کریں گے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ باکمال لوگ لاجواب سروس، محکمہ تعلیم کی نااہلی۔ چیئرمین ڈیڈر ایم پی اے گلسیف خان خٹک کی سالانہ ترقیاتی پروگرام سے منظور کیے گئے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی فنڈ ضائع ہونے کا خطرہ۔ اراضی مالکان ایوب خان اور خبیب خان کا اسکول اراضی پر براجمع ہے، جس کی وجہ سے اسکول پر تعمیراتی کام پچھلے 10 مہینے سے بند ہے، جبکہ محکمہ تعلیم کرک کی طرف سے کوئی بھی شنوائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ اس حوالے سے محمد صدیق سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ اسکول تعمیر کے لیے ہم نے مشترکہ اراضی دی ہوئی ہے، مگر محکمہ تعلیم ہمیں کلاس 4 کی نوکریاں دینے سے گریزاں ہے۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 1 زنانہ کے قریب پرانا بازار میں گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے تعفن اور بدبو کے علاوہ خطرناک بیماری کا سبب بننے لگی ہے۔ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے اہلکار مفت کی روٹیاں توڑنے لگے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں دیا ہٹک کی اس رپورٹ میں۔ ٹی ایم اے کرک، صفائی پر مامور اہلکار مفت کی روٹیاں توڑنے لگے۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کرک سٹی گندگی کے ڈھیر میں تبدیل، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 1 گندگی کے ڈھیر میں تبدیل۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 1 کرک سٹی کے سامنے گندگی کا ایک بڑا ڈھیر پڑا ہے، جس کی وجہ سے مقامی رہائشیوں کے ساتھ ساتھ اسکول میں زیر تعلیم طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گندگی کا ڈھیر مچھروں کے لیے بہترین اماجگاہ بن چکا ہے۔ مچھروں کی بہتات کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بھی درپیش ہے۔ ڈھیران کی بدبو سے مقامی آبادی بھی شدید مشکلات سے دوچار ہیں اور گھروں میں رہنا مشکل ہے۔ عوامی حلقوں کا ضلعی حکومت، انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 1 کرک سٹی کے سامنے پڑے گندگی کے ڈھیران کے فوری صفائی کے لیے اقدامات کی جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دیا خٹک، رنا ٹی وی، کرک۔ پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلباء کا بنو پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، طلباء نے قاتلوں کی گرفتاری اور طلباء کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالسلام سے۔ جی عبدالسلام۔ جی بالکل، یہ پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلباء تھے اور یہ پوسٹ گریجویٹ کالج سے احتجاج کی شکل میں، ریلی کی شکل میں نکلے اور بنو پریس کلب پہنچے۔ یہاں بنو پریس کلب کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا اور طلباء جو ہے وہ ہزارہ یونیورسٹی میں ان کے ایک ساتھی طالب علم جو گزشتہ دنوں قتل کیا گیا تھا، اس حوالے سے یہ لوگ احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے۔
एहतजाजी मुजाहिरीन मुख्तलिफ किस्म के नारे भी लगा रहे थे और कातिलों को गिरफ्तार करो ये नारे लगा रहे थे। यहाँ थोड़ी देर के लिए उन्होंने रोड को भी ब्लॉक किया और उनके कुछ साथी पेशावर यूनिवर्सिटी और दीगर इलाकों के कुछ साथी पन्नो और डी खान जेलों में हैं, वो उनके रिहाई का भी मुतालबा कर रहे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम। इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि अंधेर नगरी चौपट रात BHU वाराना मीर हसन जेल में डॉक्टर्स ने अपनी बादशाहत कायम कर दी। डॉक्टरों के बजाय क्लास 4 मुलाजिमीन मरीजों का इलाज करने लगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अहमद खटक। जी अहमद खटक, BHU में क्लास 4 मुलाजिमीन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्या माजरा है ये? PPHI के हातिमे के बाद सूबा भर में महकमा सेहत के ज़ेर-ए-एहतमाम चलने वाले बेसिक हेल्थ यूनिट लवारिस बन गए हैं और ऐसी ही हालत BHU वाराना में रसन हेल की है, जहां ना तो अवाम इलाका को इलाज मुआलजा की सहूलियात मैसर है और न ही अद्वियात, बल्कि डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद भी मरीजों की चेकिंग और ड्रेसिंग क्लास 4 मुलाजिमीन करते हैं। जी आसिफ अहमद, ये बताइएगा कि महकमा सेहत के हुकाम का इसके हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि BHU हमारी निगरानी में होने का कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। जिला करक में खनाक बीमारी ने पंजे गाड़ दिए, 5 साल के सैकड़ों बच्चों को लपेट में ले लिया। बीमारी कई हफ्तों से जिला भर में इंतहाई तेजी से फैल रही है, जिससे सैकड़ों बच्चे मुतासिर हुए हैं। जराये के मुताबिक 10 से ज्यादा बच्चों के अमवात भी वाक़ हो चुके हैं। अवाम इलाका ने जिली हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कोहाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे सहाफत व इब्लागियात में सह रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद, जिसमें करक और कोहाड़ के डिस्ट्रिक्ट सहाफियों ने हिस्सा लिया। तफसीलात मोहम्मद आमिर की इस रिपोर्ट में। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे सहाफ़त व इब्लागियात में सह रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें कोहाट और करक से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया के डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद कोहाट की सतह पर सहाफ़ियों में जेंडर बैलेंस का शऊर पैदा करने और इम्तियाजी सलूक का निशाना बनने वाली ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए सहाफ़ियों की सलाहियतों को परवान चढ़ाना था। इस ट्रेनिंग में इस बात पर तवज्जो दी जा रही है कि हम ख़वातीन को मीडिया में स्पेस कैसे दें, जेंडर सेंसिटिविटी से काम कैसे लें। वर्कशॉप के दौरान औरतों के हकूक़ और इन पर होने वाले मज़ालिम के मुतालिक आलमी सतह पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज़ को भी शुरका के लिए पेश किया गया। सहाफ़ियों ने वर्कशॉप को सराहते हुए कहा कि जनूबी अजला के सहाफ़ियों में औरतों के मसावी हकूक़ के बारे में अदम आगाही का फुकदान है। हम जो लोकल सहाफ़ी हैं, जो छोटे शहरों में रहने वाले सहाफ़ी हैं, वो इस हवाले से पैकेज बना सकते हैं, इन ख़वातीन को मोटिवेट कर सकते हैं और दूसरी जो घरों में बैठी हुई ख़वातीन हैं या जो मुआशरे में पिसी हुई ख़वातीन हैं, उनको हम ये सबक दे सकते हैं कि अगर वो थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो वो कामयाबी उनकी कदम चूम सकती है। तो चाहिए ये है कि हम अब ख़वातीन के हवाले से खुसूसी तौर पे कोशिश करें कि उनको हर प्लेटफॉर्म पे सामने लाएं। वर्कशॉप में मौजूद सहाफ़ियों ने इस अज़म का इजहार भी किया कि माशरे में हकीर समझे जाने वाले तबके की आवाज़ को अपने कलम के ज़रिए से दुनिया के सामने पेश करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, राणा TV, कोहाट। अवामी राब्ता कमेटी करक के सदर अपोजिशन लीडर मौलाना मीर ज़कम और जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद खटक ने 21 नवंबर के पोलियो मुहिम का बाइकाट का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि अगर 15 रोज में लोड शेडिंग का खात्मा और अस्पतालों की हालत ज़ार दुरुस्त ना की गई तो हम इकदाम उठाएंगे। तफसीलात मलक शाहिद की इस रिपोर्ट में। करक में ज़िंदगी की 5 सहूलियात नायाब है और दीगर और मसाइल भी हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है करक के अपोजिशन लीडर मौलाना मीर ज़कीम साहब। उससे हम ये पता करते हैं जो करक में जो आपने एहतजाज का डेडलाइन दी है, कब दी है और कब करोगे एहतजाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग हर मौके पे इलाके के मसाइल को उजागर करने के लिए कोशिश करते हैं और आज भी हमें मौका दे दिया कि हमारे आवाज़ को इक़्तिदार के अवाम तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने 2-3 महीने पहले एक धरना दिया था और 2-3 लाख लोग निकले थे हमारे साथ। कमिश्नर कोहाट ने मुज़ाकरात किए और वादे किए, चीफ पेस्को ने मुज़ाकरात किए, वादे किए और इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट के हलकारों ने वादे कर दिए
कि हम आपके बिजली के मसाइल हल करेंगे, गैस के मसाइल हल करेंगे, पानी जो हमारा तरीन मनसूबा है वज़ीरान ने ADP से निकाल करके 50 करोड़ का जो मनसूबा है वो रैली में डाल दिया। और रैली का पिछले दिनों हमारे जो DPA साहब है, नीडा के चेयरमैन है, उसने 1 रुपये भी उसके लिए नहीं दे दिया। तो लिहाजा हम पानी 40-50 रुपये में एक बाल्टी खरीद रहे हैं। ये किस वक्त तक हम ये रोना रोते रहेंगे? और इसके साथ जो अस्पताल का हालात ज़ार है, पूरे पाकिस्तान में कहाँ भी जो ज़राना हेडक्वार्टर अस्पताल है वो सूबाई गवर्नमेंट के साथ उसका रिलेशन है, जबकि हमारे ज़िला करक का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है वो ज़राना का वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मर्दाना पे उसकी डिपेंड है। तो लिहाजा ये भी हमारा अस्पताल का मसला है। और ये जो हमारे 4 मुतालबे हैं ये हमारे साथ मुज़ाकरात भी कर दिए गए थे, लेकिन कोई भी उस पर अमल नहीं हुआ। आज कौम तंग है, परेशान है और हमें जीना नहीं है जब तक हमारे ये मसाइल हल ना हो जाए। हमने ये फैसला कर लिया कि 15 दिन तक अगर हमारे ये मसाइल हल न किए गए और हमारे साथ बामकसद मुज़ाकरात न किए गए तो हम 21 तारीख को पूरे 6 यूनियन कौंसिल की आवाम को जमा करेंगे और अपने MPA और MNA उसका इसमें बहुत ज़्यादा दखल है। मौलवी साहब, आपके साथ जो पोलियो के अभी की बात हो रही थी, पोलियो के क्या ये भी कर रहा हूँ, वो भी हम इसके बाइकाट का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ हुकूमत वक्त जो कह रहे हैं कि ये बैनुल-अक़वामी मसला है पोलियो का, हम कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी से भी ज़्यादा हमारा ये बुनियादी हकूक़ है। पोलियो तो हम हिफ़्ज़-ए-मात कदम हमें दे रहे हैं, लेकिन हमारी ये मसले मौजूद है। 24 घंटे हम इसके साथ हमारा आमना सामना होता है। ये मसले अगर हमारे पूरे नहीं हुए तो हम ये कहते हैं कि भाई पोलियो भी ले जाओ ताकि हम जिंदा न रहे, हम पोलियो के बजाय हम कब्र में चले जाएं, वो हमें मंजूर है। लेकिन इस हाल में ज़िंदगी हमें मंजूर नहीं है कि औरतें भी निकल रही हैं, बच्चे भी चीख रहे हैं, बूढ़े भी चीख रहे हैं, बड़े भी चीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह 24 को हम ये दोनों ऐलान करेंगे, पोलियो का भी और MPA और MNA का भी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं और तरह के मसाइल पर बात करना चाहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता भी है और आप लोगों ने ये मीडिया पे चलाया भी है कि हमने धरने दिए हैं, हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन बुनियादी हकूक़ जो हमारे हैं उस पर हम बात करेंगे। और उसके लिए हमने तकदू की हैं और बहुत से डिपार्टमेंट से हमने बात की है। हर डिपार्टमेंट के चीफ से हमने बात की है। उसमें उन लोगों ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं किए। अवाम ने कोऑपरेशन किया लेकिन उन लोगों ने वो वादे पूरे नहीं किए। लिहाजा हम आज जो मीटिंग हमने की है ये बड़ा मौसर और बहुत पुरअमन जो मीटिंग हमने किया है, लेकिन लोगों के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया है कि 21 तारीख को 15 दिन का डेडलाइन जो हमने दिया है, 21 तारीख को हम इन लोगों को ये टाइम 15 दिन और भी देते हैं ताकि वो मसले जो हमारे साथ जो वादे बिजली में किए गए थे या पानी की वजह से या पानी का जो मसला था या बुनियादी अस्पताल का मसला था या जो भी गैस के मसले थे उस पर जो बात की गई थी उसको हल करें। अगर हल नहीं करेंगे तो हम 21 तारीख को अपना लाएअमल का ऐलान करेंगे और उसमें बुनियादी जो वादे हैं उनको उसका बाइकाट करेंगे। उसमें हमारे वरिष्ठ लीडर साहब ने जो बातें की हैं, मौलाना मीर ज़कीम साहब ने, हम उससे इत्तेफाक करते हैं और ये हमारा इत्तेफाक है और 6 यूनियन कौंसिल का बुनियादी और अमान का इत्तेफाक के साथ ही हम करेंगे। आज के बुलेटिन से बस इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा पेज www.rana.tv।